Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. We are studying semantics, and in our today's lecture, we are going to discuss Unit 2 of semantics. And in this unit, we will discuss these 6 topics. Number 1, pragmatics, natural and conventional signs, linguistic signs, utterance and sentence, prosody, intonation. We are going to discuss these 6 topics points with very easy example. So let's begin with pragmatics. Pragmatic is the study of how people understand कि लोग कैसे समझते हैं the real meaning of words, words के real meaning को in different situation. Sometime what we say, कभी कभार जो कुछ हम कहते हैं and what we actually mean और जो हकीकत में हमारा मतलब होता है can be different, उसमें फर्क हो सकता है. Pragmatics helps us understand, pragmatic हमारी help करती है that hidden or indirect meaning को understand करने में. For example, if someone says, can you pass the salt? क्या आप salt pass कर सकते हैं? At the dinner table, they are not asking whether you are physically able to pass the salt. They are politely requesting you to give it to them. वो ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप salt दे दो. The sentence is a question in form, but a request in meaning. ये sentence question की form में है, लेकिन meaning इसका क्या है कि ये एक request है कि salt दे दें. Pragmatic studies these kinds of real life use. Pragmatic जो है, ये real life का जो use है language का, उसकी इन kinds को discuss करती है. In the classroom, if a student says, it's very hot in here, कि बहुत गर्मी है, they may actually be asking the teacher to turn on the fan, कि फैन को ऑन कर दिया जाए. The words don't directly say it, but the meaning is clear. Words directly वो जो है वो नहीं कह रहे होते, लेकिन उनका meaning clear है from the situation. Pragmatics also includes politeness है इसमें, tone, body language and the speaker intention. और जो speaker है बोलने वाला, उसका intention मकसद. It answer questions like what did the speaker mean, कि speaker का मतलब क्या है, why did they choose these words, उन्होंने ये word को choose कैसे किया, how did the listener understand it, listener ने इसको कैसे समझा. In short, pragmatic is about meaning. ये meaning के बारे में है, उन meaning के बारे में in use जो use में होते हैं. Not just meaning in words, जो words में नहीं होते, words के meaning बज़ाहिर नहीं होते. It is what helps people understand jokes. इससे लोग jokes समझ पाते हैं. Sarcasm, indirect request and everyday communication in real life. Student, that was our first topic. Now we are going to discuss our topic number 2, that is natural and conventional science. So we start with our topic 2. Signs are things, signs वो चीजें होते हैं that give us message, जो message देते हैं, और information. Even without using full language, we use signs every day. हम daily signs के इस्तेमाल करते हैं to understand the world. दुनिया को समझने के लिए around us, there are two main types of signs, नेचुरल साइंस एंड कन्वेंशनल साइंस. तो नेचुरल साइंस को देखते हैं. नेचुरल साइंस आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ये इंसानों के नहीं बनाए होते. दे अकर नेचुरली एंड गिव अस अ क्लू अबाउट समथिंग. फॉर एग्जांपल, इफ द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स, अगर आसमान काले बादलों से भरा हो, वी अंडरस्टैंड इट माइट रेन सून, के जल्दी बारिश होगी. नो वन टेल्स अस दिस विद वर्ड्स, कोई बंदा हमें वर्ड्स में नहीं बताता. वी जस्ट नो इट फ्रॉम द एक्सपीरियंस. सिमिलरली, इफ समवन हैज अ रेड फेस, अगर किसी का फेस रेड हो एंड इज स्वेटिंग, वी कैन गैस दे आर टायर्ड और फीलिंग हॉट, कि वो टायर्ड है और उनको गर्मी महसूस हो रही है. These signs gives us information without using language. लैंग्वेज का यूज किए
ये वर्ड्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और लर्निंग दे आर अंडरस्टूड नेचुरली, इनको हम नेचुरली समझते हैं। ऑन द अदर हैंड कन्वेंशनल साइन, जो रवायती साइंस होते हैं, आर मेड बाय ह्यूमन, ये इंसान बनाते हैं, एंड नीड टू बी लर्न, और इनको लर्न करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, रेड ट्रैफिक लाइट मींस, रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब है स्टॉप, के रुक जाएं, एंड ग्रीन लाइट मीन गो। These meanings are not natural. We learn them as part of our culture or society. Another example is the way we use signs in writing. जिस तरीके से हम राइटिंग में साइंस के इस्तेमाल करते हैं, like a question mark at the end of the question. This is conventional sign that we understand only after learning its use. Words in a language are also conventional signs. Language में जो words होते हैं वो conventional signs होते हैं. The word tree is not naturally connected. ये word tree जो है ये naturally connected नहीं है to the object it represents. We learn that tree refers to a tall plant. हम ये सीखते हैं कि जो ट्री है ये एक छोटे से पौधे को रिफर करता है, बिकॉज आवर लैंग्वेज एंड कल्चर हैव टॉट अस सो, क्योंकि हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज ने हमें ये सिखाया होता है। सो नेचुरल साइंस आर अंडरस्टूड, नेचुरल साइन अंडरस्टूड किए जाते हैं, समझे जाते हैं, अंडरस्टैंड किए जाते हैं बाय ऑब्जर्विंग नेचर। वाइल कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल रवायती स्टाइल साइंस होते हैं उनको सीखा जाता है इंसानी कवानीन से। both types helps us make sense of the world। दोनों हमें जो है ना क्या करते हैं समझने में, कि सेंस बनाने में हेल्प करते हैं हमारी दुनिया का, बट इन डिफरेंट वेज, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से। अब हम अपना जो थर्ड टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज लिंग्विस्टिक साइंस। लिंग्विस्टिक साइंस आर साइंस, लिंग्विस्टिक साइंस वो साइंस होते हैं that belong to language, जिसका ताल्लुक लैंग्वेज के साथ है, एंड कैरी मीनिंग थ्रू वर्ड्स और साउंड्स, वर्ड्स और साउंड के जरिए वो मीनिंग कैरी करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वेन एवर वी यूज अ वर्ड, जब कभी भी एक वर्ड का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट समथिंग, वी आर यूजिंग अ लिंग्विस्टिक साइन, तो हम लिंग्विस्टिक का साइन यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड एप्पल इज अ लिंग्विस्टिक साइन, ये एक लिंग्विस्टिक का साइन है। इट इज जस्ट अ साउंड, ये एक साउंड है, और अ ग्रुप ऑफ लेटर, बट व्हेन वी हियर और रीड इट, लेकिन जब हम इसे रीड करते हैं, ये सुनते हैं, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ द राउंड स्वीट फ्रूट, तो हमारे माइंड में एक गोल और एक स्वीट सा फ्रूट आ जाता है। So language uses sign to represent things, actions, ideas, and feelings. According to famous linguist, एक famous linguist जिसका नाम फर्डिनेंड डी सोसर है, उसके अकॉर्डिंग एवरी लिंग्विस्टिक साइन हैज टू पार्ट्स। वो कहता है कि हर लिंग्विस्टिक साइन के दो हिस्से होते हैं। सिग्निफायर, द साउंड आर रिटन फॉर्म द वर्ड ट्री, यानी साउंड और रिटन फॉर्म जो है वो लिंग्विस्टिक साइन के। और दूसरा सिग्निफाइड, द आइडिया और कॉन्सेप्ट, आइडिया और एक कॉन्सेप्ट या ख्याल जो हमारे माइंड में होता है, जैसे कि पिक्चर वगैरह ट्री की। टुगेदर दीज मेक अप अ कंप्लीट लिंग्विस्टिक साइन। फॉर एग्जांपल, द वर्ड बुक इज द सिग्निफायर, ये जो वर्ड बुक है ये एक रिटन फॉर्म है, एक साउंड है, ये सिग्निफायर है। एंड द मेंटल इमेज ऑफ द बुक, और जो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है किताब की वो सिग्निफाइड है। विदाउट बोथ, इन दोनों के बगैर द वर्ड हैज नो मीनिंग, इसके कोई मीनिंग नहीं होते। What is important to understand is that these signs are not natural. ये साइन नेचुरल नहीं होते। The word cat is used in English, but in French, लेकिन फ्रेंच में the same animal is called chat. This shows that words are agreed upon, कि words जो हैं उन पर मुतफिक हो जाते हैं। कौन? by a group of people, they are conventional, ये रवायती होते हैं, not fixed by nature। Linguistic signs are used in speaking, speaking में linguistic signs इस्तेमाल होते हैं, writing and even gestures in some cases like sign language, they help us communicate ideas clearly and understand each other।
एवरी टाइम वी रीड, जब कभी हम रीड करते हैं, राइट और टॉक, वी आर यूजिंग लिंग्विस्टिक साइन, तो हम लिंग्विस्टिक साइन का यूज कर रहे होते हैं टू गिव एंड रिसीविंग मीनिंग, मीनिंग देने या रिसीव करने के लिए। अब हम अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि अटरेंस एंड सेंटेंस का है। इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में अ सेंटेंस एक सेंटेंस और एक अटरेंस। अटरेंस होता है बोलना किसी चीज का, अटर करना, अटर से अटरेंस निकला, आर नॉट द सेम इवन दो दे मे लुक सिमिलर। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलोज। सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें ग्रामर के रूल्स होते हैं, कंप्लीट मीनिंग इसमें होता है। It can be written down or spoken. For example, the boy is playing in the garden is a sentence. It follows correct grammar. इसमें correct grammar है and expresses a full idea. इसमें एक full idea है. But when this sentence is actually spoken by someone at a particular time, लेकिन जब कोई बंदा इसको particular time में इस sentence को बोलेगा real situation में, इट बिकम्स एन अटरेंस, तो ये एक अटरेंस बन जाता है। एन अटरेंस इज द रियल यूज ऑफ ए सेंटेंस इन स्पीच। स्पीच के अंदर एक सेंटेंस का जो रियल यूज है वो अटरेंस होता है। इट मे इंक्लूड इमोशन, इसमें इमोशन, टोन, स्पीड और इवन बॉडी मूवमेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेम सेंटेंस द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन कैन sound happy, angry, or surprised, depending on how and when the speaker says it. Also, not all utterances are full sentences. जरूरी नहीं है कि सारे utterances जो हैं वो पूरे sentence में हो। Sometimes people say only one word or phrase like thanks or coming. These are not complete sentences. ये पूरे sentence नहीं होते, but they are real utterances because they are spoken in real situation, क्योंकि ये real situation में बोले जाते हैं और इनमें meaning होता है। So the main difference is a sentence is a written or spoken structure। एक sentence written और spoken structure है that is complete and follows grammar, और utterance is the actual use of language in real life। It may include voice, emotion and timing। In short, a sentence is pattern and utterance is a performance। ये एक sentence जो है वो एक utterance है, जबकि जो इस सेंटेंस जो है वो एक पैटर्न है, जबकि जो अटरेंस है वो उसकी परफॉर्मेंस है। सेंटेंसेस लिव इन बुक्स, सेंटेंसेस बुक्स में होते हैं। अटरेंसेस लिव इन कन्वर्सेशन, लेकिन जो अटरेंसेस हैं ये कन्वर्सेशन में होते हैं। अब हम अपने टॉपिक नंबर 5 की तरफ आते हैं, दैट इज prosody। prosody is prosody जो है is the music of speaking। ये बोलने की मौसीकी है। इट मीन्स हाउ वी यूज और वॉइस, के हम अपने वॉइस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं, इंक्लूडिंग द रिदम, जिसमें रिदम, स्पीड, लाउडनेस, पाजेज एंड स्ट्रेस ऑन सर्टेन वर्ड शामिल होता है। इवन इफ वी यूज द सेम वर्ड्स, अगर हम सेम वर्ड यूज कर रहे हों, द वे वी से देम कैन चेंज। और लेकिन जिस तरीके से हम उन वर्ड्स को बोलते हैं, मीनिंग चेंज हो जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है, और फीलिंग बिहाइंड द वर्ड। प्रोसिडी हेल्प अस अंडरस्टैंड नॉट जस्ट व्हाट समवन इज सेइंग। सिर्फ ये नहीं बताती कि एक बंदा क्या कह रहा, बट हाउ दे आर सेइंग इट, लेकिन लोग उसको कह कैसे रहे हैं ये भी हमें prosody बताती है। For example, imagine someone says the sentence, I didn't say he stole the money. Now try saying it many times, each time putting stress on a different words. For example, I didn't say he stole the money। अब I पे stress है, तो इसका मतलब ये बन रहा है कि मैं नहीं कह रहा कि उसने ये रकम चुराई है, मतलब किसी और ने चुराई है। अब हम स्ट्रेस को डिडंट पे ले, आई, जैसे आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, इसका मतलब यह है कि मैंने तो ये कहा ही नहीं। अब थर्ड स्ट्रेस देखें, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी। अब ही पे स्ट्रेस है तो इसका मतलब है कि किसी और ने चुराई है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी।
आप स्टोल पे स्ट्रेस है, तो हो सकता है उसने उधार ली हो। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस के को चेंज करने से जो प्रोसिडी है उस वो चेंज होती है। द सेंटेंस स्टेज द सेम बट द प्रोसिडी चेंजेस द मीनिंग। Prosody also include pauses in speech. For example, a pause after if only I had creates suspense or emotion. Loudness also matters. Loudness भी मैटर करती है। Shouting shouting जो है, जो चिल्लाना है, शो करता है एंगर को, while a soft voice can show love or fear. Speaking of talking can show excitement, fast or sadness slow. Prosody helps us sound natural. Prosody से हम बिल्कुल नेचुरल और एक्सप्रेसिव फील होते हैं। विदाउट prosody our speech would sound robotic। हमारी जो स्पीच है वो रोबोटिक हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। It plays very important role in everyday communication, storytelling, teaching, action and even singing। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ। दैट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन राइज एंड फॉल है हमारी आवाज में। ठीक है, इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ आवर वॉइस व्हेन वी स्पीक। इट शोज आवर फीलिंग्स। ये हमारे फीलिंग को शो करता है, एटीट्यूड को, एंड whether we are asking a question, making a statement, or giving a command. Even if the words are same, the way our voice goes up, words सेम भी हों लेकिन हमारी आवाज अप होती है या डाउन होती है, can completely change the meaning. For example, if someone says you are going with rising, you are going with rising at the end, it sounds like a question. और अगर जो है जैसे you are going, इसमें अगर हम फॉलिंग जो वॉइस है, ठीक है, वो एंड पे हो, यू आर गोइंग, तो फिर क्या होगा? तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर जो है वो सरप्राइज शो किया जाए, यू आर गोइंग, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये शॉक और सरप्राइज्ड स्टेटमेंट है। There are mainly three types of intonation patterns. Rising intonation, जो हमने पहला पढ़ा, जिसमें क्वेश्चन वगैरह होता है, जैसे is it is it raining? Falling intonation, like it is raining, it is raining. Third one, rise and fall, when the voice rises and then falls. Really, intonation also helps us sound polite or rude. For example, saying sorry with a soft falling tone shows you are truly mean it. But saying sorry with a flat, लेकिन आप फ्लैट राइजिंग टोन में बात कर रहे हो, साउंड लाइक यू डोंट केयर, आप इसकी परवाह नहीं करते। इन शॉर्ट, इंटोनेशन एड्स लाइफ टू आवर स्पीच। इंटोनेशन हमारी स्पीच में लाइफ ऐड करता है। विदाउट इट स्पोकन लैंग्वेज वुड बी डल। स्पोकन लैंग्वेज डल होती है एंड लिसनर्स माइट मिसअंडरस्टैंड। लिसनर मिसअंडरस्टैंड कर पाते हैं आर इमोशन, आर इंटेंशन। इट हेल्प्स द लिसनर, ये लिसनर को हेल्प करता है, नो नॉट ओनली व्हाट वी से बट आल्सो हाउ वी फील, हम फील कैसे करते हैं व्हेन वी से इट। तो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन of that was our main question, a very long question of unit 2, and we have discussed in details. We have discussed language in use in details. We have discussed six points, six topics, and we have covered the whole second unit. I'm sure that you have understood the whole stuff as I have tried to convey, tried to teach you with very easy example. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your comments in comment section. Thank you very much.